Neha, sorry, Mini, what should be the verb for साथ देना? The verb for साथ देना should be accompany. Come again? अच्छा, Ac- okay. Neha di, what should be the second form of accompany? Mini, नहीं, The accompany. second form of Accompany. accompany should be accompanied. Meaning, the second form of accompany should Sorry, be sorry, it's my go, Neha. okay. Good morning, Neha di. Nidhi, did you? What should be the third form of accompany? Come again, Neha. Actually, I could not listen because Adi came, that's why. Come again, please. What should be the third form of accompany? The third form of accompany should be accompanied. Mini, what is company? The company is noun. Neha di, what is the Hindi meaning of company? The Hindi meaning of company साथ देना. Toli. The Hindi meaning of company should be toli. Rosni, what is the company? The Rosni, company what is the another company? व्यक्ति व्यक्तियों के दोनों Good morning, Rosni. गुड मॉर्निंग की जगह आगे बढ़ा दो, किसी से तो मिलेगा उत्तर नहीं. Okay, Nidhi, what is the another company? Neha, the another company is uh, noun. Is a noun. Mini, what is the Hindi meaning of another company? The Hindi meaning of another company is व्यापार के लिए बनाया गया समूह, व्यक्तियों द्वारा व्यापार के लिए बनाया गया समूह. Nidhi, to whom did you accompany? Mini, you can answer. She's having problem. Network. Okay, anyone can answer, or you can ask me the same question. Nehadi, So come again. Okay. to whom did you accompany? Well, I accompanied my fast friend. Sir, to whom मतलब किसके साथ? Okay, Nidhi, you can ask me. Sir, to whom did you accompany? I accompanied my neighbor. सर आपने किसके साथ ग्रुप बनाए थे दल?
ऐसा कुछ है। किसके साथ सर आपने व्यापार के लिए समूह बनाया था? Okay. किससे? Minnie, have you written the first one? Yes, sir, I have written the first one. Should I erase? Yes, sir, you should erase, please. Neha Di, have you written the second one? Yes, Minnie, I have written the second one. Should I erase Di? Yes, of course, Minnie, you should raise that. Nisha Di, have you written the third one? Yes, I have written the third one. Should I Minnie? raise the? Should I raise? Yes, you should raise. Nidhi, have I written the fourth one? Have Sorry, Sorry. come again. you written the fourth one? Minnie, Yes, I Wait. have also written the book. Minnie, did you accompany your fast friend? Yes, sir, I accompanied my fast friend. क्या तुमने अपनी पक्की सहेली का साथ दिया था? हाँ सर, मैंने अपनी पक्की सहेली का साथ दिया था. निधि दी, did you accompany your neighbors? Yes, of course. I accompanied my neighbor. दी, क्या आपने पड़ोसी का साथ दिया था? हाँ, बिल्कुल मैंने अपने पड़ोसी का साथ दिया था. रोशनी, did you accompany your life partner? Yes, I accompanied my life partner. रोशनी, क्या आपने अपने जीवन साथी का साथ दिया था? हाँ, मैंने अपने जीवन साथी का साथ दिया था. निशा चाची, did you accompany your सासू माँ? Yes, I accompanied my sasuma. क्या आपने Sorry, अपनी Di. सासू- Sorry, Di. Yes, I accompanied your sasuma. क्या आपने रोशनी, अपनी actually the verb is accompany. accompany? क्या आपने अपनी सासू माँ का साथ दिया था? हाँ, मैंने अपनी सासू माँ का साथ दिया था. Who is rest? I am Rash Di. Neha, did you accompany your neighbor? Sorry, Di. Did your company? Yes, Di. I accompanied my neighbor. नेहा, क्या आपने अपनी पड़ोसियों का साथ दिया था? हाँ दी, मैंने अपने पड़ोसियों को साथ दिया था. नहीं दी. Did you accompany your sisters? Yes, Neha. I accompanied my sisters. जी, क्या आपने अपनी बहनों का साथ दिया था? हाँ नेहा, मैंने अपनी बहनों का साथ दिया था भैया. This sentence was rest, right? So who has to make this Yes, sentence? Sir, I have to make this sentence. Go ahead. Sir, this sentence is related to future continuous tense. It is an negative sentence. It is a negative sentence. It is a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I.
Later on, I will take the first form of nahi. I will take the later on. I will take the uh, first form helping. Sorry, helping verb. One thing is very nice that you were absent, but you watched the videos. Nice try. Now let me give this chance to somebody else. Who has to make this sentence? I have to make this sentence. Uh, this sentence is related to future continuous tense. It is in a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and subject is I. Later on, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Uh, thereafter, I will take the uh, thereafter I will take the second helping verb, and the second helping verb is be. Later on, I will take the first form of the verb. The first form of the verb is remember. Thereafter, I will take the sorry. First, I will take the subject, and subject is I. Later on, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Later on, I will put the negative word, and the negative word is not. Thereafter, I will take the second helping verb, and the second helping verb is be. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is remember. Thereafter, I will take the extension, and lastly, I will take the extension. Extension is again and again. The, and last, I will put the question mark. Thank you, Nice. sir. Thank you. Now, who has to make this sentence? Nidhi, do you remember the accurate verb? Sir, I have to make this sentence. Yes, sir. Mini, go ahead. So this sentence is related to future continuous tense. It is a affirmative. It is a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Thereafter, I will take a negative word, and negative word is not. Thereafter, I will take the second helping verb, and the second helping verb is we. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is remind. Thereafter, I will put ing. Later on, I will take सब्जेक्ट तो हो गया यू. यहाँ पे फिर यू के लिए क्या होगा? आई फॉरगेट. लेटर ऑन आई विल टेक ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज अगेन एंड अगेन. Nice. Important thing is missing, so I'm transferring the sentence to Nidhi. Mini, have I given this verb in your batch? No. You have Hey. used it from your own mind, na? Yes, sir. That is good.
Sir, as far as I think, spelling is wrong, sir. Remained. Sir, it is. Remind. You are right. Sir, MINDING. Yes. Thank you. चलो आगे बढ़ने से पहले तब तक इन लोगों के लिए इसको मिनी तुम पूछ लो। नहीं, मिनी ने तो इतनी देर तक इंग्लिश बोल ली है। निधि तुम पूछ लो। Roshni, what should be the verb for याद दिलाना? The verb for याद दिलाना should be remind. Neha, what should be the second? Neha, what should be the second form of remind? The second form of remind should be reminded. Nishadi, what should be the third form of remind? The third form of remind should be reminded. No. Nidhi, go ahead. Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is related to future continuous tense. It is a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Later on, I will put the negative word, and the negative word is not. Thereafter, I will take the second helping verb, and the second helping verb is be. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is remind. Later on, I will put ing with first form of the verb. Thereafter, I will take the object, and the object is you. एक Sir, is it right? सेकेंड निधि, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? Sir, कर्म, करेक्ट। कर्म किसे कहते हैं? जिस पे कर्ता का प्रभाव पड़ता है। कोई और बताएगा कर्म किसे कहते हैं? वो तो क्रिया होती है ना। कोई भी बता सकता है तो जो काम जिस पर हो रहा होता है। क्रिया का सर। यस, क्रिया का। क्रिया का जिस पे असर पड़ता है तो ये कर्म ही होगा। निधि, go ahead. Okay, sir. And lastly, I will take the extension, and the extension is again and again. Finally, full stop. Mini, speak this as it is. I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाता रहूंगा। नेहा दी। I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाता रहूंगा। निशा दी। जेंडर का ध्यान रखें, आप अपने हिसाब से बोलें। स्त्रीलिंग। I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाती रहूंगी। रोशनी। I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाती रहूंगी। निधि दीदी। I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाती रहूंगी। Who is rest?
All are done. Sir, actually, I always used this verb. When my husband went to village, uh, I always said to him, I will remind you. मोबाइल में भी रिमाइंडर होता है ना। चलिए दोस्तों, 3 चीजें बदलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई एम स्टार्टिंग। कुछ अच्छा सोच के प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाना हमारी जिंदगी से जुड़े हुए, और ना भी बने तो कोई बात नहीं। ही विल नॉट बी हेल्पिंग हर अगेन एंड अगेन। वो बार बार उसकी मदद नहीं करता रहेगा। शी विल हैव टू हेल्प हरसेल्फ। उसे अपनी मदद खुद करनी होगी। Sir, I am ready. She will not be uh, accompanying him again and again. वह उसका बार बार साथ नहीं देती रहेगी। Who is ready? I'm ready. She will not be reminding. She will not be protect him again and again. वह उसकी मदद बार बार नहीं करती रहेगी। Ready? I'm ready. निधि, हाँ थोड़ा सा अपन इसको धारक को बदलने जा रहे हैं। तुम अगर क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, तुम उसका जैसा उत्तर देना हो वैसा देना, जो मर्जी हो, यस में नो में। फिर अपना प्रश्न किसी और से पूछना। विल रशिया बी इन्वेडिंग यूक्रेन अगेन एंड अगेन? You are mute. Yes, sir. Russia will be. Sir, I forgot verb. So, say come again. Sir, come again, please. Will Russia be invading Ukraine again and again? Yes, sir. Russia will be invading Ukraine again and again. क्या रूस बार बार यूक्रेन पर हमला करता रहेगा? हाँ सर, रूस बार बार यूक्रेन पे हमला करता ही रहेगा। Now, who is ready for answer? To answer. तुम लोग ये आगे बढ़ाओ। मैं एक शेयर कर रहा हूँ, सुबह के बैच में थोड़े अच्छे बच्चे हैं जागरूक, तो वो ये चीजें शेयर करते रहते हैं, तो मैं वो तुमसे शेयर कर रहा हूँ, कंटिन्यू रहना। I'm ready, Di. I'm also ready. Di. Okay, patience. I will ask after some time. जिसका प्रश्न तैयार हो वो पूछिए। Okay, sir. Who is ready? Neha, are you ready? Yes, Di, I'm ready. Will Pakistan be defaming India again and again? Come again, Di. Will Pakistan be
defaming India again and again? Yes, the Pakistan will be defending India again and again. नेहा, क्या पाकिस्तान बार बार भारत को बदनाम करता रहेगा? हाँ दी, पाकिस्तान बार बार भारत को बदनाम करता रहेगा. Who Mini, is ready? Who is ready? Mini, your Mini will. Di, can I? Mini will Cheen shooting. रोक दी. नहीं. Yes, you can. Nimi, will Sachin Tendulkar be playing again and again? Yes, the Sachin Tendulkar be playing again and again. come again, Mini. Something is rest. You're mute. Yes, Sachin Tendulkar will be playing again and again. क्या सचिन तेंदुलकर बार बार खेलता रहेगा? हाँ दी, सचिन तेंदुलकर बार बार खेलते रहेंगे. Now who is ready? Rosni, are you ready for answer? I am ready. To answer? Neha, will he be making dosa for you again and again? Yes, the I will be making dosa for again and again. क्या वह तुम्हारे लिए बार बार डोसा बनाती रहेगी? Sorry, Rosni, now. So, sir, he. Actually, Roshni was correct. Neha gave wrong answer. Neha gave wrong, and Rosni's Hindi is also wrong. Okay, Yeah. Roshni. Please come again, Rosni. Rosni, please come again. क्या वह बार बार तुम्हारे नहीं Repeat क्या your English. नेहा Okay, you can ask Mini. Neha's network is not good. okay. मिनी will he be making dosa for you again and again? According to this English, let's see the Hindi of Roshni. Mini answer. He will be. The starting is wrong. उत्तर ऐसे नहीं शुरू करते. Yes, yes, sir, sorry. Yes, he will be making for me dosa for me again and again. क्या वह तुम्हारे लिए बार बार डोसा बनाती रहेगी? Sora. क्या हाँ, वह मेरे लिए बार बार डोसा बनाता रहेगा. जी सही है यार. हम अपनी गलती सही है. करेक्ट. इट विल डू. सर उसने नमक डाल दिया है, अच्छा लगने लगा. Will India be tributing martyrs again and again? निधि दी. Yes, India will be. देखिए देखो वो आईएनजी कहाँ लगा रही है बेटा. अच्छा, पेइंग ट्रिब्यूट, सॉरी. हाँ, इंटरव्यू. सही है फिर. Come again. Your whole sentence. Will India be paying tribute martyrs again and again? To the martyrs.
Yes, India Matters. will be paying Wait, tribute. wait. Okay, sir. To the martyrs. Hmm. The to the martyrs. Will India be paying tribute to the martyrs again and again? Yes, India will be paying tribute to the martyrs again and again. क्या इंडिया शहीदों को श्रद्धांजलि देता रहेगा? को बार बार श्रद्धांजलि देता रहेगा? हाँ, भारत शहीदों को बार बार श्रद्धांजलि देता है। तुमने मिनी बहुत अच्छी वर्ब उठाई, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लिया, ऑब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लिया, और तुमसे उच्चारण गलत हो रहा था तो हमने सुधरवा दिया। जैसे ही हमने उच्चारण किया गूगल ने सही शब्द ले लिया, मार्टर्स। सर मैं पहले पूछने वाली थी, फिर मैंने कहा बोलती हूँ, फिर सर खुद ही सही कर देंगे। बिल्कुल, अब तो सभी कुछ पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, तुम रुको मत, तुम बोल दो, बाद में वो सही हो जाएगा। इस बहाने तुम्हारे मुंह से 2 बार इंग्लिश निकलेगी, तुम ज्यादा बोलोगे। मार्टर, ये शब्द कहीं लिखवाया है बेटा? नो सर। चलो एक बार हम सेम क्वेश्चन पूरा दोहरा देते हैं। रोशनी, विल इंडिया बी पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द मार्टर्स? Yes, yes, India will be playing to the martyrs. निधि तुम उत्तर दे दो। Yes, India will be paying tributes to the martyrs. क्या भारत शहीदों को पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा? हाँ, भारत शहीदों को पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। रोशनी, will CID be revealing cases again and again? Yes, CID will be revealing cases again and again. क्या CID केसेस को बार बार पर्दाफाश करते रहेंगे? Yes, CID बार बार। इट इज नॉट वर्किंग ना सर, केसेस, केस। केसेस इज करेक्ट, बल्कि यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रख दो। कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट ए मिनट निधि, मार्टर्स, MARTYRS, मार्टर्स। Meaning, what is martyr? The martyr is noun. Martyr is noun. हालांकि तुमने पूछ लिया तो हमने टोका नहीं। वो जब अपन शुरुआत करते हैं तो वहां बुलवाने के लिए, वार्म अप के लिए ये सब पूछते हैं। अब तुम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ो। और हालांकि मुझे ये लिखवाने की जरूरत भी नहीं थी, स्क्रीन पे आ गया था, कुछ सजग लोगों ने खट से लिख लिया होगा और वो जाके गूगल। Who is the rest? रोशनी, will CID be revealing difficult cases again and again? Yes, CID will be revealing difficult cases again and again. क्या CID डिफिकल्ट केसेस बार बार
उजागर करते रहेंगे। हाँ, CID डिफिकल्ट केसेस बार बार उजागर करते रहेंगे। सर ये केसों का पर्दाफाश करते रहेंगे, ऐसा कुछ ना। बहुत हार करें। अब मैं एक प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाता हूँ। मिनी, विल योर दीदी बी वेकिंग यू अप एवरी डे? Yes, sir. My Didi will be waking up me. निधि, कैन यू आंसर? ये थोड़ा सा अलग है। Sir, actually, I forgot object. Yes, my Didi will be waking up me again and again. हाँ, इसका सिद्धांत याद है कि भूल गई? दीदी एक बार और बोलो ना। Sir has given us. पहले तुम वो बोलो तब मैं बोलूँगी। नहीं, एक Come मिनट हम again. रुक जाओ, बता देते हैं। तुम में से किसी ने अपनी स्पीच में यूज किया था कि नहीं? सर मैंने I used it again and again. Yeah. नहीं, अगेन एंड अगेन नहीं, ये वेकअप वाला पैटर्न। Yes, sir. यार सभी I ने will किया have था। to. I will have to. Sir, for my husband. By the way, he always get up early in the morning, but sometimes I will have to wake up. ऐसा कुछ सर। तो एक बार हम इनको सबको एक राउंड Wake चलवा him up. दें, ठीक है? चलो निधि, तुमसे शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ फ्रेजल स्पेलिंग तो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गई है, फ्रेजल वर्ब। लेकिन यहाँ पे फ्रेज का मतलब टुकड़ा होता है। तो दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। और अंग्रेजों के पास जब कुछ क्रियाओं की कमी पड़ जाती है, जैसे जागना के लिए क्रिया है अंग्रेजों के पास, जगाना के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों शब्दों के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो फिर तो जैसे कि वहां नहलाना, है ना? जगाना, नहलाना, तैयार करना, चोटी करना, हिलाना, नचाना, गवाना, बहुत सारे ऐसी क्रियाओं में हम बीच में प्रयोग करते हैं। अभी हम एक प्रयोग करके दिखा रहे हैं। हम निधि से शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी रख देना निधि। अब निधि एक मॉम है, तो वो अपने बच्चे का नाम रख देगी, तुम लोग कोई भी रिश्तेदार का नाम रख देना। यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट इस बहाने तुम्हारा ऑब्जेक्ट का भी अभ्यास हो जाएगा। ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, शी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब सब्जेक्ट है। तो हम निधि से पूछ रहे हैं, और आपको नाम ही रखना पड़ेगा, आप रख लो। निधि, टू whom do you wake up? सर I am waking हम प्रेजेंट से to करेंगे। you. टू whom Yeah. do you wake up? Sir, I wake आदि up. करेक्ट। तुम किसको जगाती हो? सर मैं आदि को जगाती हूँ। मिनी, to whom do you wake up? I wake Virat up. यस। मिनी, आप किसको जगाती हो? मैं विराट को जगाती हूँ। नेहा दी, टू whom do you wake up? Mini, I wake Pavni up.
दी आप किसको जगाती हो? मिनी मैं पावनी को जगाती हूँ। निशा दी, टू होम यू आर वेक अप। निशा दी, Sorry, come again. to Sorry, whom Neha. do you wake up? I wake. Vadahi. Enough. चलो रोशनी, तुम्हारा समय बचा लेते हैं। रोशनी, टू whom do you wake up? Sir, I wake my son up. वेरी नाइस। तुम किसको जगाती हो? सर मैं अपने बेटे को जगाती हूँ। तुम मुझसे पूछ लो। सर, to whom do you wake up? आई वेक हिम अप। सर आप किसको जगाते हैं? मैं उसको जगाता हूँ। ऑब्जेक्ट है हिम। तो कुछ सेंटेंस अगर मन में आए इससे संबंधित अलग टेंस में किसी भी चैप्टर में, तो व्हाट्सएप करना। कल पहली बार तुम्हारे में से कुछ लोगों ने अच्छे सेंटेंस बना के भेजे थे, मैंने चेक भी करके उसको रिटर्न किया था। शायद मिनी ने भेजे थे। हाँ, तो एक आध जो गलत था हमने उसको गलत कर दिया था, जो सही थे सारे सही कर दिए। पहली बार हुआ है। और निधि ये अच्छी शुरुआत है, और सॉरी मिनी ये अच्छी शुरुआत है। बस इसमें एक समस्या आती है कि जब और कोई नहीं करता ऐसा, तो वो बंदा भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है जो उत्साहित है। लेकिन तुम कमजोर मत पड़ना। तुम अपने जब भी कुछ भी आए तुम भेजते रहना, और हम इस तरह से चेक करके बताते जाएंगे। नहीं तो तुम दूसरों के चक्कर में पता चला तुम आगे बढ़ रही थी और पीछे आ गई। तो तुम बढ़ते जाना, जो भी मन में आए भेजते रहना। जैसे अभी मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सब चीजें। एसएससी का एग्जाम है मेरा, हाँ, उसमें इंग्लिश का सारे सिनोनिम एंटोनिम ये सारा सिलेबस रहता है। अब बच्चों फ्यूचर कंटिन्यूस में हम फिर से लौटेंगे, तो एक पेज दोनों तरफ का अल्टी पल्टी छोड़ दो और सीधे हाथ के पेज की तरफ राइट हैंड पेज पर अगली हेडिंग, अगला शीर्षक लिखो। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट हेडिंग? Sir, the next heading should be present perfect tense. करेक्ट। अब लगे हाथ तुम अगला सवाल दाग दो। रोशनी दी, Roshni Di, what should be the first point? The first point, in identification. अब तुम यही सवाल आगे बढ़ाओ, तुम्हारा उत्तर पूरी तरह से ठीक नहीं था। The identification. Neha, what should be the first point? the first point should be identification. Nisha di, what should be the identification? Meaning, what should be the identification? Sir, the identification should be रहा होगा, सॉरी, करता रहा है, करती रही है, करते रहे हैं। अब समझ गए होंगे बच्चों की शुड में क्या पूछते हैं, क्योंकि मैंने सिखाया तो है नहीं, तो तुमसे अनुमान लगवाते। तुम्हारा अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी। रोशनी से पूछो, देखें उसके मन में क्या है।
Roshni, what should be the identification? The identification should be कर चुका होगा, कर चुकी नहीं, कर चुकी है, कर चुका है, types and so on. Nice. Ask the same question to Neha. Neha will ask Nidhi. Neha, what should be the identification? The identification should be करता रहा है या करती रही है या करते रहे हैं. निशा दी, what should be the identification? Nidhi नहीं, Nidhi दी. Okay. Says Okay, that. Nisha, Nidhi, what should be the identification? The identification should be आ गई हैं, कर लिया है, चली गई हैं, चुका है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, बहुत हो चुका. Yes, sir. बहुत हो चुका, चुकी. So on. आ गए हैं, चले गए हैं, कर लिया है, खा लिया, सो गए हैं. Please write it down. दोस्तों, अगर आपको पहली बार में अजीब लग रहा है तो बिल्कुल चिंता न करें. थोड़ी देर बाद जब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये टेंस मैं आज दे रहा हूँ, लेकिन इसका प्रयोग संभवतः मैं फर्स्ट वीक से ही मैंने शुरू कर दिया था. किसी को याद हो तो एक आध सेंटेंस बता दे. Have you given? वर्ब लिखने के बाद मिटाने से पहले पूछते हैं. Have you given this? Yeah. Have you written this? Yes. Have you written the first one? Should I erase? क्या आपने पहली वाली लिख ली है? क्या मैं मिटा दूं? चलिए, अब जिसने भी ये लास्ट क्वेश्चन किया था, चलो नेहा की. नेहा, अगला सवाल तुम निशा से पूछ लो. तुम्हारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी और निशा की भी. Nisha दी, what should be the formula? अच्छा, वाह यार, गुड. Okay, दी, what should be the second point? रोशनी, तुम पूछ लो बेटा. Mini, what should be the second point? Good. The second point should be formula. Nisha Di, what should be the formula? The formula should be I don't know. Maybe वो दूसरे नंबर पे मैं वो भी लिख रहा हूँ. तुम आगे बढ़ो निशा, अपना पूछो. Nidhi, what should be the formula? The formula should be subject. Sir, can I tell? Or try. Subject plus has, have, oblique, has plus third form of the verb plus object plus extension. Yeah. मैंने चुका है, चुकी है का
अपमान करने के लिए ऐसा नहीं बोला था, मैंने उसको सेकेंडरी लेवल पर ले लिया है। उसका भी कहीं कहीं प्रयोग उचित होता है, हम आगे देखें। दोस्तों, फॉर्मूला लिखते हुए एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण बिंदु मन में उतारते चलो। 5 चीजों के बाद V3 का चोली दामन का साथ होता है। ये एक मुहावरा है और वो 5 चीजें हैं हैज, हैव, हैड, बी, गेट। इन 5 चीजों के बाद अगर क्रिया आएगी बच्चों तो थर्ड फॉर्म में ही आएगी, अन्यथा नाउन आ जाएगा। आप लिख रहे हैं इसलिए मैं स्क्रीन के सामने नहीं हूं, मैं इसको एक बार और दोहराऊंगा। हैव यू रिटन? Should I appear? Yes, sir. Yes, sir. We have it. 5 चीजों के बाद V3 का चोली दामन का साथ होता है। ये आज से बहुत काम में आएंगी और मिनी ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली 4 में भी पूरा हो जाता, लेकिन हमारे धर्म में पंच परमेश्वर, तो इसलिए मैंने उसे 5 बना दिया है। 2 आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हैज, हैड, इसके बाद वाले टेंस में आएगा बी, और बी का ही छोटा भाई या बहन मान लो गेट है। तो 5 करने के लिए मैंने उसको 5 बना दिया है। 4 से 5 का अंक ज्यादा अच्छा है। तो ये 5 चीजें आएंगी, हैज, हैव, हैड, बी एंड गेट। तो इसके साथ V3 का चोली दामन का साथ होता है, यानी इसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा, या फिर नाउन आएगा। अभी हम थर्ड फॉर्म तो आज से प्रयोग करना शुरू कर ही गए हैं। नाउन कैसे आएगा मैं अभी एक राउंड खिलवा के सबसे बता देता हूं। आप चाहो तो यस में आंसर दे देना, चाहे नो में, जो मर्जी हो, जो वास्तविक हो वो दे देना। निधि, डू यू हैव अ ब्रदर? Yes, sir. I have a brother. अब हैव के बाद ब्रदर आया जो कि एक नाउन है, संज्ञा है। निधि, क्या तुम्हारा भाई है? हाँ सर, मेरा भाई है। Minnie, God bless you, sir. Minnie, have you uh, God bless you, sir. थैंक यू। Sir, I forgot question. Have you sister? चलो, किसको याद Sir, है I वो? am ready. हाँ, Sir, I am ready. Mini, रोशनी। Mini, do you have car? Yes, I have car. विनी, क्या आपकी कार है? नहीं, यहाँ पे हिंदी बदल जाता है। यहाँ पे वस्तुएं जैसे आती हैं तो के पास शब्द आ जाता है, और व्यक्ति आता है तो फिर हिंदी बदल जाती है। विनी, क्या आपके पास कार है? हाँ दी, मेरे पास कार है। नेहा दी, डू यू हैव डू यू हैव सिस्टर?
Yes, Mini, I have sister. डी, क्या आपकी बहन है? हाँ मिनी मेरी बहन है. Nisha di, do you have a father-in-law? Yes, I have father-in-law. क्या आपके ससुर हैं? हाँ, मेरे ससुर है. आपके पास क्या आपके ससुर हैं? Nidhi, do you have money? Yeah, of course. I have lots of money. निधि, क्या आपके पास पैसे हैं? हाँ निशा, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं. सर इधर ये मतलब प्रेजेंट सिंपल की तरह पूछा जाता है इसको. ये है सेक्टर है निधि, ये पैटर्न बेस में मिलता है, काफी विस्तृत रूप से हम देते हैं अच्छे से. तो अभी जितना प्रयोग अपन कर रहे हैं उसको स्वीकार करते चलो, फिर तुम पैटर्न बैच ज्वाइन करना, उसमें खूब मजा आता है. 1 महीने का रहता है, उसमें बहुत सारे स्पेशल पैटर्न्स होते हैं. सर उसके लिए 6 स्पीचेस देनी होंगी ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें ऑनलाइन स्पीच दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो. जो जबलपुर में रहते हैं वो यहाँ आके सुबह के ऑफलाइन बैच में भी स्पीच दे सकते हैं, और जो घर से जिनके लिए निकलना आसान नहीं है वो वहीं से किसी दूसरे बैच में स्पीच दे सकते हैं. अभी हमने इसलिए किसी से ये बात नहीं बोली कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे जरूरी होता है स्पोकन इंग्लिश में. खूब सारा प्रयोग होता है. उसके 15 दिन बाद, इसके 15 दिन बाद कुछ ऐसी चीजें आपको और मिल जाएंगी जिसके बाद आप दूसरे बैच के सामने जाके ऑनलाइन स्पीच दे सकते हो. और बाकी जो नए बच्चे जिनके मन में आ रहा है कैसे करते हैं, तो वो चिंता ना करें. निधि थोड़ा सा जानती है चीजें, उसने देखी हुई हैं. तो सबसे पहले निधि स्पीच देने आएगी किसी दूसरे बैच में ऑनलाइन में. तो हम क्या करेंगे, उस ग्रुप में एक दिन के लिए निधि को जोड़ेंगे, और तुम्हें किसी और को सुनने के लिए आना तो तुम सबको भी जोड़ देंगे. उसमें सब अपनी खिड़की बंद करके बैठ सकते हो और सुनना कि निधि कैसे स्पीच दे रही है. और तुम्हारे इस ऑनलाइन बैच में निधि कोई आया अभी तक मिनी स्पीच देने? यहाँ खड़े होके किसी ने स्पीच दी हो? यस सर, भैया आए थे, वो बॉम्बे से आए थे, जो नाम आए आई फॉरगॉट. हाँ 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 हाँ. हाँ, ओके. जय. ऐसे फ्लुएंट इंग्लिश, बाप रे, माय गॉड. तो ऐसे आप स्पीच धीरे धीरे अपन उस ओर बढ़ेंगे. अभी लेट्स कम टू द पॉइंट. थैंक यू. पहला राउंड हमेशा हम लोग आई से खेलते हैं. बच्चों आज आप अपने रजिस्टर को अच्छे से खोल के रखो और थर्ड फॉर्म पे अपनी निगाह जमा लो. आज पहली बार आप क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग करने जा रहे हो, तो उसको देख देख के ही रखना. पहला राउंड हम अफर्मेटिव आई से खेलेंगे, और आई के साथ सहायक क्रिया है लगती है. उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है. हिंदी थोड़ा सा सोच समझ के अच्छे से बोलना, तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है. निधि. आई हैव डन होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क कर लिया है. वेरी नाइस. रोशनी. आई हैव मेड मील, मैं खाना बना चुकी हूँ. ये देखो आ गया. बोलो भारत माता की. गुस्सा हो गया सर. ओके, आई एम रेडी.
I have seen that movie. वेरी नाइस. मैंने यह मूवी देख ली है. Now who is ready? हाँ, अब ऐसा ही पूछना चाहिए, एकदम से नाम मत लो. I am ready. I have slept. मैं सो चुकी हूँ. वेरी गुड. तो बोल कौन रहा है बेटा? वेरी नाइस. दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कोई कार्य प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अभी अभी पूरा हो गया है. जैसे आई हैव गिवन यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टुडे. मैंने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे दिया है. चलिए हम इसको अगला राउंड मान के शुरू करते हैं. मिनी से पूछे क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर देते हैं. ठीक है मिनी? मिनी, हैव यू, तुम चाहो तो नो में भी उत्तर दे सकती है, उसमें सरल होता है, कठिन नहीं है. हैव यू टेकन योर डिनर मिनी? No, sir. I have not take तुम my yes dinner. बोल रही हो कि नो बोल रही हो? हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं. Come again, sir. हाँ, हैव यू टेकन योर डिनर? No, sir. I have not take my dinner. या फिर taken ही आएगा. Taken my dinner. चलो निधि से पूछ लेते हैं. निधि, हैव यू रीजॉइंड, हैव यू जस्ट रीजॉइंड? Yes, sir. I have just joined. क्या तुमने अभी अभी फिर से ज्वाइन किया है? हाँ सर, मैंने अभी अभी फिर से ज्वाइन किया है. हु इज रेडी पूछ लो. Who is ready? I am ready. I'm okay. I'm ready. रोशनी से पूछ लो. रोशनी, have you? निधि's network is little. Yes, sir. Yes, sir. My network is making mistake. Okay, Roshni, have you seen Pushpa? Yes, sir. I have seen पुष्पा. क्या तुमने पुष्पा देख ली है? हाँ सर, मैंने पुष्पा देख ली है. How is it? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. पिक्चर का नाम थिएटर क्या? अच्छा. मिनी, हैव यू सीन पुष्पा? Yes, sir. I have seen Pushpa. क्या तुमने पुष्पा देख ली है? हाँ सर, मैंने पुष्पा देख ली है. How is it? Sir, it is very joyful. कैसी है? सर वो अच्छी है. अब तुम अगला सवाल कर लो. रोशनी से ही कर लो. रोशनी दी, have you bought a new car? Yes, I have bought a new car. दी, क्या आपने नई कार खरीद ली है? हाँ, मैंने नई कार खरीद ली है. नेहा, have you had boss? Yes, I have had boss. Should I start the dinner? क्या तुमने मुँह धो लिए? हाँ हाँ जी, मैंने मुँह धुल लिए हैं. मैं खाना लगा दूं? Who is ready? I'm ready.
Ready? It's my Gozdi. Who is ready? Have you कहाँ गए? have you learned stories? Yes, I have learned stories. Sorry. Yes, I have. Yes, Neha, I have learned the story completely. क्या आपने स्टोरी पढ़ ली है? हाँ, मैंने स्टोरी पढ़ ली है। आपने स्टोरी याद कर ली है जी? Nidhi, have you Minnie, have you completed your household chores? Yes, sir, I have completed my household chores. क्या तुमने अपने घर के काम निपटा लिए हैं? हाँ सर, मैंने अपने घर के काम निपटा लिए हैं। रोशनी, have you done your laundry? Yes, sir. I have done my laundry. क्या तुमने सारे कपड़े धो लिए हैं? हाँ सर, मैंने सारे कपड़े धो लिए। Neha, have you made all the rotis and sabji? Yes sir, I have made roti and sabji. तुमने सब्जी और सारी रोटी बना दी? हाँ सर, मैंने सब्जी सारी रोटी बना दी बना दी है। Neha, Sir, have you served dinner to your husband? Yes sir. तुम्हें तो हस्बैंड ही नहीं है। निशा से पूछ रहे। निशा, हैव यू सर्व्ड डिनर टू योर हस्बैंड? Yes, sir. I have served dinner to my husband. क्या तुमने अपने पतिदेव को खाना परोस दिया है? जी सर, मैंने अपने पति देव को खाना परोस दिया है। हैव यू गिवन हिम रसगुल्ला? No, sir, I have not given rasgulla. So go and give him rasgulla. Meanwhile, I am asking to Minnie. Minnie, have you filled the PSC form? no sir, I have not filled the PSC form. तुम यस सर से उत्तर शुरू करती हो, हमें ऐसा लगता है। No sir. क्या तुमने पीएससी का फॉर्म भर दिया है? नहीं सर, मैंने PSC का फॉर्म नहीं भरा है। When will you fill? Sir, I filled When when you I fill? Fill in the blanks. I filled. Sorry, when will you fill? So when will When will I you will fill? I will fill when I am नहीं I अरे काय परेशान हो रहे? मंडे बोल दो, 20 तारीख बोल दो, 15 बोल दो, 30। okay sir. I will fill 20th March. अब ऐसा नहीं लगा कि ऑब्जेक्ट की कमी है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा। I will feel 20 March. फील नहीं करना है, फील तो Filled. महसूस करते हैं। Fill sir, fill 20 March PSC form. चलो तुम हमसे पूछ लो।
Sir, when you feel अरे गलत पूछ रही तो रहने दो. चलो. Now who is ready? I am ready. Okay, ask. Sir, have you rectified her mistake? No, I have not rectified her mistake. I forgot. सर, क्या आपने उसकी गलती माफ कर दी है? अरे रे रे कचरा हो गया रे. Sir, I क्या am आपने leaving the उसकी class. गलती सुधार दी है? नहीं, मैंने उसकी गलती नहीं सुधारी है. मैं भूल गया था. I forgot. Yes. Next. Sir, my data is over. That's why I am leaving the class. Everybody, good night. Shabba khair. See you tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir, and good night, sir.